Perfect. All right. Are we live? Are we live? How to check that? Okay. All right. So today we are going to discuss a very, very, very important topic. Yeah. It's a $1 million question, whether I should rent or buy. And as last time when me and Amit were together. Yeah. So before that, guys, welcome Amit. Thank you. Thank you. All right. Great to see you. And now the $1 million question which we're going to handle today is whether to rent or buy. Absolutely. Right? So किराए का घर कौन चाहता है? So सबसे पहले हम बात करेंगे कि Before you start, Shammi ji, do you think we should apologize to the audience because we promised that we'll be live at 4, but because of some technical glitches, we were not able to be on time? Right, we should actually. Guys, first of all, we heartily feel sorry कि 4 बजे हम exactly live नहीं आ पाए क्योंकि 4 बजे live ना आने का reason था कि लाइट चली गई. नहीं, अभी बहाने बनाने दो endless, right? तो कुछ important task आ गया था, बहुत important task था. We have had somebody over whom we could not avoid, and we will definitely share with you who was over, but at a later point in time, not today. Correct. Right, Amit? Absolutely. So, again, we apologize for not being on time, and probably some people who have been waiting, your time is very precious. Certainly, you guys can come and see us, and we will try to see that how can we compensate for your time. Exactly. All right? Okay. So, किराए के घर का फायदा. Starting with the pros of renting or the reasons for renting. I mean, what do you think? What are the most important reasons why a person would be renting versus not buying right now? Sorry. So, मेरे हिसाब से बहुत, so many people live in this world, right? And every one situation is absolutely different and very, very unique. Right. If I were to say that मेरे जिंदगी में वो कौन सा स्टेज था जब मुझे रेंट करना अच्छा लगता था, right? When I was not certain about what's happening in my life. Stability नहीं थी. Exactly. Right. So I was in China at that time, and I just got married. My wife was working in India, and I was living in Shanghai. Wow. Right? तो पता नहीं था कि, and we were of course making amends to make sure that she also, finds a job over here in China, right, and she can come. Right. अब पता ये नहीं था कि उसकी जॉब शंघाई में लगेगी कि गोंजो में लगेगी या मेरी जॉब वहां पे रहेगी कि नहीं रहेगी. Right. So I had an option to buy at that point in time, but a very, very logical decision was, why should I get stuck? Because I don't know what is going to happen. When you don't know clearly what will be the future. Absolutely. Right? So the biggest advantage of renting, according to me, is you're free. Right. You have complete freedom over where you want to live. Wonderful. अब जैसे कल को किसी का, if somebody is planning a baby, and they cannot afford to live in a very good school district. Right. In terms of, home prices. Correct. If they cannot afford to buy. लेकिन रेंट तो अफोर्ड किया जा सकता है. बिल्कुल. सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो है. आप बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जाके you can rent a small space or big space or whatever according to your budget, even without buying that unaffordable home. Right. वो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एडवांटेज है. फ्रीडम. You decide where you want to go. You decide when you want to go. Right. ठीक है. Perfectly taken your point. हम इन पॉइंट्स के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. पहले सारे के सारे प्रोज काउंट करते हैं हम रेंटिंग के. ठीक है. तो एक आपने मेंशन किया वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज फ्रीडम, वेयर यू वांट टू बी, राइट, फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी, राइट. दूसरा बड़ा फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. करेक्ट. सिर पे, राइट. करेक्ट. सो इससे कि क्या होता है, तुमने किराया दिया, बाकी तुम्हें मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं. हाँ. तुम्हें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है कुछ. एग्जैक्टली. यूटिलिटीज तो देखो, चाहे अपना घर हो या किराए का घर हो, यूटिलिटीज देने तो वो एक न्यूट्रल फैक्टर रहेगा. लाइट जलाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे. एग्जैक्टली. पानी चलाओगे पैसे देने पड़ेंगे, राइट. गैस जलेगी, हीट होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, राइट. तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो वो तो चाहे किराए का घर हो चाहे अपना घर हो, उसमें तो चलेगा ही चलेगा. सो प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस का एक
मुद्दा जो है वो भी अपने घर पे ही आता है, करेक्ट, किराए के घर पे नहीं आता। हाँ, किराए के घर पे आजकल वो चीजें चेंज हो रही हैं कुछ। हाँ, अब लैंडलॉर्ड चाहता है, मकान मालिक चाहता है कि सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सिर पे आए ताकि आप उसको ध्यान से यूज कर सको, करेक्ट, है ना। आपने विलफुली तोड़ दिया, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपने आपके घर पे रीजनेबल वेयर एंड टियर से जो भी काम हो रहा है उसका भी पहला 50 या $100 आपका खर्चा है, उसके ऊपर जितना होगा वो लैंडलॉर्ड का होगा, करेक्ट, तो आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, करेक्ट, राइट। सो ये चीज इसमें एक पॉइंट है which can be a topic of a completely different podcast altogether, the rights of tenants and in terms of what he or she is supposed to take care. करेक्ट, ये बहुत बड़ा confusion है, राइट, and because in Ontario we have like more than 20-25% of population which is new to the country, right? They don't know uh, how actually things work, what are the laws, राइट, right? राइट, तो उनको अपने rights ही नहीं पता होते बहुत सारे लोगों को, करेक्ट, right? Right. And sometimes, unfortunately, the landlords are not good. They do not inform Right. the rights, the real rights of the tenants, and they misuse or exploit the tenants. I have seen that a lot happening. Right. So that is a different topic altogether. आप हर बार की तरह आप अगला टॉपिक पहले दे जाते हो, तो हम अगला टॉपिक उसमें फिर से डिस्कस करेंगे, राइट्स ऑफ द टेनेंट्स। सो दैट विल बी फॉर अ लेटर पॉइंट इन टाइम फॉर श्योर। गुड थिंग यू ब्रॉट इट अप। सिमिलरली अभी हम कर रहे हैं रेंटिंग पे बात, तो रेंटिंग के एडवांटेजेस हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी, रेंटिंग के एडवांटेज हो गए, मेंटेनेंस का खर्चा तुम्हारे सिर पे नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्सेस तुम्हारे सिर पे नहीं है, और कोई एडवांटेज आप सोच सकते हो? और यू आर एक अच्छी मतलब वो इट कैन वर्क इन द फेवर ऑफ द टेनेंट और इट कैन आल्सो वर्क अगेंस्ट द टेनेंट। यू आर कंप्लीटली फ्री from the ups and downs of the real estate market. Right. So you are basically neutral. You are basically unaffected by whether price ऊपर जाता है, नीचे जाता है, किसी का mortgage कम होता है, ज्यादा होता है, तुम्हारा किराया तो खड़ा है भाई, तुम्हें तो उतना ही किराया देना है, right? Correct. पर किराया भी तो बढ़ता है यार। So, I mean, if I am sure a lot of people know, right? For the benefit of those who don't, 2018 के बाद जो घर बने हैं, हाँ, उनके ऊपर रेंट कंट्रोल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कॉन्डो विच वाज बिल्ट और फॉर दैट मैटर हाउस और एनीथिंग, उसके पहले के जो बने उन पे रेंट कंट्रोल है। हाँ, उसके पहले जो बने उस पे रेंट कंट्रोल अप्लाई होता है, उसके बाद पे रेंट कंट्रोल नहीं है। तो इफ आई हैव अ कॉन्डो ऑफ built in 2019, possession 2019 में आया था, I can after 1 year when the lease ends, मैं अपने टेनेंट से कह सकता हूँ कि अब आपका रेंट $500 बढ़ गया है। बिल्कुल, you can bring the rent up to market speed. Basically. Or no, if I want to bring it up to the market speed, good. But let's say that I am the landlord and I don't, I have problems with the tenant, whatever, and I want that person to leave. I can just increase the rent crazy. I can say, okay, $2,000 rent increase, right, on top of what you're paying. Right. He or she will have to pay that. Right. And if he or she is not paying, he or she has to leave. Correct. However, 2018 से पहले के जो बिल्ट हैं उसमें सिर्फ 2-2.5% ही रेंट बढ़ाया जा सकता है, right? तो which is very very nominal, right? So that also gives you, so that is one of the benefits of renting, right, that it gives you a safety, right, and security and certainty, right, that my if today my rent is $2,000, 2% of $2,000 is what, $40-45. That is all it will increase, right, which is very much affordable, right? So the certainty of your expenses is also good if you're renting something which is before 2018. Correct. Right. लेकिन उसके बाद वाले जो घरों में है वो तो they can bring you up to market speed or wherever they want to take you. Correct. After your lease expires. Correct. So now with this we will come to the downside of renting. शमी जी, एक सेकंड, इसमें ना एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। Let's say my house is built in 2016. It's a detached to garage home, right? But the basement was unfinished in 2016. I got the basement legally second dwelling unit finished in 2020. A lot of people ask that question. I would like you to answer it, or maybe we can ask the audience if they know to answer, and then we can answer it later. Whether the basement, which is built after 2018, but the house was built before 2018, will the basement second dwelling unit have rent control or not? See, that's a very interesting question. Yeah, let them answer. Now, I would want to tell you that what happens from where do they take the dates कि completion date क्या थी, है ना?
क्योंकि अगर कोई कॉन्डो या कोई भी घर पोजेशन हुआ है, फर्स्ट टाइम वो 2019 में डिलीवर हुआ है, तो उसकी डेट ऑफ सेल रजिस्टर्ड है। ठीक है। सिमिलरली अब जो बेसमेंट अपार्टमेंट है, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है, अगर आपका लीगल अपार्टमेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लीगल अपार्टमेंट में हो, लीगल सेकंड ड्वेलिंग यूनिट, लीगल सेकंड ड्वेलिंग यूनिट का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन is the date of manufacturing or delivery of that unit. Oh, so that means if it is 2020, even though the house was before 2018, right, even then the basement will not have rent control. Basement will not have rent control. Wow. I hope this answers a lot of people's questions. बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि ओके, किसी को अधपक्की इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने उसी हिसाब से प्रोसेसिंग शुरू कर दी। Correct. किसी को पता चला कि 2018 से पहले का इस पे 2.5% ही बढ़ सकता है, तो उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। Correct. हमारे पास बहुत सी बार ऐसे केस आते भी हैं कि जिसमें लोग ये सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लीगल सेकंड ड्वेलिंग रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो दैट इज पोस्ट द फैक्ट, व्हिच मींस दैट आफ्टर द रेंट कंट्रोल डेट, which means that they can bring it up to speed, or they can increase the rent whenever and wherever and however it is feasible after the current lease expires. Okay. Right. And again, now 90 days के notice के साथ based on landlord tenant board का N4 form जो है, so landlord have to give tenant the notice of 90 days before the lease expires if they intend to increase the rent right away. Correct. So अगर वो कभी नहीं दे पाते हैं 90 डेज का नोटिस, तो अगले महीने की पहली तारीख से फिर वो नोटिस काउंट होगा। करेक्ट। सो दैट इज द वे। इफ यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेंट फ्रॉम April 1st, फॉर एग्जांपल March 31st इज द लास्ट डे ऑफ योर करंट लीज, तो लैंडलॉर्ड को बाय January 1st तुम्हें नोटिस देना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर वो January 5 को या 10 को देता है, तो इसका मतलब है कि February 1st से 90 डेज हो गए थे। करेक्ट। So that is how it works. Correct. This is a very good information, and people who don't know, they should know how to exercise their rights if you're renting. Right. So you are not at the mercy of the landlord to do whatever he or she wants to do. Correct. There are rules for even such a small thing, that when can you increase the rent. Correct. So now अब हमने टेनेंट का रेंटिंग के बेनिफिट्स देखे। करेक्ट। अब हम रेंटिंग के कॉन्स, रेंटिंग के लॉसेस देखेंगे। ओके। राइट, क्योंकि प्लस और माइनस हर एक चीज के रहेंगे। ऑफ कोर्स। सो अब रेंट करने का नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है रेंट करने का? बड़ा छोटा तो क्वांटिफाई करना मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि आई एम नॉट प्रो रेंटिंग नाउ। लाइक एज आई सेड दैट बिफोर आई वाज इन दैट सिचुएशन वेयर रेंटिंग वाज द मोस्ट वायबल ऑप्शन। करेक्ट। अभी ऐसा नहीं है, राइट? And especially considering the high growth Canadian real estate, right? If I have any way of getting into buying a home, I would try to do that. Right. I will make sure that I have the required resources of buying a home, so that I can enter the market. So, according to me, if you ask me what is the best advantage, is to be able to ride the wave of a rising market, correct, real estate market, right, and gain the benefits of appreciation. Right, absolutely right. Even at a minimum 5%, if, for example, the average value of a house today is $1 million, right? Okay, let's say $800,000. Let's say $500,000. If you buy something worth $500,000, right? Even if the market goes up in 1 year by 5%, which is very, very normal, if you take the average of next 5 years, it will be definitely more than 5%, right, yearly on an average. Even with that, you are making $25,000 a year. Right. Profit, right, just because you made the decision of buying the home. Correct. Right? Correct. Absolutely. Over a period of 5 years, you will make close to $140,000, $150,000. Is there any other way you can do that? Certainly not. What was your input in buying the house? 5%, $25,000. Right. That's it. Right. Right. So the biggest benefit of buying a home and not renting is you will be able to ride the wave of the growing market. Correct. Certainly. That is one of the very important factor जो लोग मिस कर जाते हैं शायद,
कि भाई अगर तुम मिनिमम डाउन पेमेंट देके भी घर खरीद सकते हो तो खरीद लो। ना हो कोई भी घर खरीदते हो वो 1 साल का पर्सपेक्टिव दिमाग में रख के नहीं खरीदते हो। अपना घर खरीदते हो, कम से कम प्राइमरी की बात करें, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, प्राइमरी की बात करें कि यार कौन बंदा प्राइमरी घर खरीदना चाहता है सिर्फ ये सोच के कि मैं 1 या 2 साल में बेच दूंगा? कोई भी नहीं। तो मतलब है कि तुम ऑटोमेटिकली यू विल टेक अ बिगर चंक ऑफ द प्रॉफिट, कॉज प्राइमरी घर बाय करते हो तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं है भाई। करेक्ट। चाहे वो $1 million वैल्यू बढ़ जाए उसकी। करेक्ट। तो दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, दैट द मनी इज इन योर पॉकेट, राइट? उसके बाद मंथली मॉर्गेज पेमेंट जो दे रहे हो आप, उसमें से एक चंक जो है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल, सो इट्स अ फोर्स्ड सेविंग एवरी मंथ। रेंट देते हो वर्सेस आप मॉर्गेज पेमेंट देते हो विच आर प्रोबेबली इक्वल, तो उसमें से भी एक सर्टेन बिगर चंक, ऑलमोस्ट 25-30% का चंक राइट फ्रॉम द स्टार्ट सेविंग टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल, राइट? देन ऑन द टॉप you are eating up on the equity appreciation eventually. Right? So this is a double dip kind of thing. Right. तो versus अगर आप रेंट कर रहे हो तो आप रेंट में आपका पैसा जा रहा है एवरी मंथ, उसका कोई रिटर्न नहीं है। 1 महीना खत्म हुआ, रेंट गया, खत्म कहानी, दोबारा से नया महीना जीरो से चालू, राइट? सो दीज आर कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के जिसमें अब बाइंग के बारे में अगर हम बात करना शुरू हो गए हैं तो बाइंग के और क्या बेनिफिट, एक तो इक्विटी एप्रिसिएशन का बेनिफिट हो गया, और क्या बेनिफिट है बाइंग का? बाइंग के बेनिफिट के बजाय हम लोग बात कर रहे हैं नॉट रेंटिंग के बेनिफिट। करेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं नॉट रेंटिंग के बेनिफिट, ठीक है, यू हैव अ पीस ऑफ माइंड, राइट? बिकॉज यू आर ऑलवेज एट रिस्क, राइट, दैट योर लैंडलॉर्ड, हिज और हर सिचुएशन माइट चेंज and they want themselves to move into that particular property. Means you are not vulnerable anymore. Exactly. So आपका vulnerability वाला situation अब diffuse हो गया। Correct. अगर आप buy करके बैठ गए, हाँ, तो चाहे भले ही आप 3 बेडरूम का या 4 बेडरूम का घर में रेंट कर रहे हो वर्सेस आप 2 बेडरूम का घर अपना लेके बैठे हो, तो आप vulnerable नहीं हो। Correct. Nobody can throw you out of your house. Nobody can. Right? But over there हमने जो बात करी थी कि अच्छे स्कूल की वजह से हमने घर तो ले लिया वहां पे, right, लेकिन 6 महीने बाद तो नहीं कर सकता है। But when your lease expires or whatever, the landlord wants to move in. You have to move out. You have no other choice. Correct. You are always at risk. Right. The moment you start renting, that वो पक्का ठिकाना नहीं है, हो नहीं सकता है। बिल्कुल सोच के मत बैठिए। Exactly. कोई हिला नहीं सकेगा हमें। और एक मुझे ना बहुत अच्छी बात, एक मेरा क्लाइंट था, उसने बोली थी कि why I want to buy a home and not rent. उस कहता था, he said, you know what, when I rent, I'm not making memories. Right. But when I live in my home with my kids and my family, I feel like I'm making memories in that particular home. Correct. And that reminds me also that, whatever homes I've lived in which were mine, I still have the memories attached to those homes. Correct. मैं वही कहने वाला और रेंट वाले सारे भूल गया हूं मैं। देखो भाई, बात यूं है कि आप चाहे 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, जब भी आप वापस जाते हो ना बैक होम, उस घर पे जहाँ पे आपने बचपन बिताया था, करेक्ट, तो वो यू रीलिव थ्रू दैट, राइट? रेंट वाली 50 जगह आप उसमें से निकल जाओगे, कभी कुछ याद भी नहीं आएगा, नहीं आता, कभी याद नहीं आता, और इंसान शायद वो याद रखना ही नहीं चाहता, करेक्ट, क्योंकि वो हमेशा ना एक अलगाव सा रहता है। अगर आप किराए पे रहते हो ना, तो एक फीलिंग होती है, ये मेरा नहीं है, हाँ, ये मेरा नहीं है, 100%। वो फीलिंग तो है। अब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ फीलिंग यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू बिगर डिसीजंस एंड ऑल दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। सम पीपल से कि भाई, जैसे कि अब बात ही कर रहे हैं, तो ये भी कई लोग ये भी कहते हैं कि फूलिशनेस है, ये है, वो है। बट एशियन फैमिलीज, they have a completely different mindset altogether. Correct. It's like me and you. Correct. Like I have feelings attached to a home, right, which I am never able to attach to a rented property. बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ. ऐसा ही है। और हर एक के साथ है, हाँ. knowingly unknowingly हर एक आदमी के दिमाग में वही चीजें रहती हैं, क्योंकि हम जैसे बड़े हुए हैं, हम पैदा होने से जैसे जैसे बड़े हुए हैं, ये सारी की सारी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते थे, हम भी वैसा ही सोचते हैं। And it's automatic. Correct. You don't have to beat these things into somebody else. Correct. Just cause they see everything on daily basis, they go through all these things, so that is how they develop this sense. Absolutely. Right? Absolutely. तो अभी हो गया कि भाई, और क्या रीजन हो सकता है भाई साहब ना रेंट करने का? क्या रीजन हो सकता है?
फीलिंग हमने वो इमोशंस हमारे जुड़ गए। Correct. अपना घर है तो किराए के घर के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। अपना घर लिया तो हम पैसे सेव कर लेते हैं, उसका एक चंक जो है वो प्रिंसिपल में चला जाता है, इक्विटी का एप्रिसिएशन हमारा हो जाता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? Basically, these are the bigger things. Of course, if you look at the smaller things, you are never allowed to make changes into a rented property. Correct. Even I have seen extremes where the landlords don't even allow you to make a hole on the wall and hang a picture. Right. Even for those things, they have to take written permissions from the landlord. Correct. Express consent. Yeah, right. Yeah. So if you happen to be with such a landlord, I mean, you are actually bound to make even a one step or any kind of change in that home. Right. Your kids come, they bring things from school, right. Those, drawings and all those things. You want to put it up somewhere. You are living in a home. Right. You want to make it like a home. You want to put pictures. You want to put, we just celebrated Diwali. You want to do all those lights and this and that. Right. But sometimes you're not allowed to. Correct. You're absolutely not allowed to. Right. So वो भी एक मुझे लगता है कि that is also benefit of your own home. You can do whatever you want to do. बिल्कुल अपने घर को अपने घर की तरह सजाना. Correct. Right? Making a house feel like home. Feel like home. Right. Right. So home sweet home वाली फीलिंग ऐसे ही नहीं आती है. नहीं वो बिल्कुल. कुछ करने से आती है. सर्टेन चीजें सर्टेन जगह पे रखनी, सर्टेन वॉल डेकोर करना, सर्टेन तरह की सेटिंग बना के रखना, वो सर्टेन तरह के कलर कॉम्बिनेशंस रखना, राइट, जो कि किराए के घर पे पॉसिबल नहीं है. राइट. You first of all, even if your landlord is allowing you to color the walls pink, right, let's say, पहली बात तो वो अलाउ नहीं करते हैं कई बार, right, but let's say वो अलाउ कर रहा है, color the walls pink, you feel like यार ये खर्चा क्यों करूं, ये घर तो मेरा ही नहीं है. Exactly. It's an expense, right? Exactly. तो आप आधे टाइम उसी में रह जाते हो, right, कि दिवाली की लाइट, क्रिसमस की लाइट बाहर लगाऊं कि ना लगाऊं, right, क्योंकि आप you don't want to get into a fixed infrastructure, correct, which you will not be able to take out, right? Because it's not your home. Bilkul. So those changes, you just keep on thinking, and then you end up not doing it. Right. So you're missing out on those small things as well, and they are very big. Absolutely. So Amit, now हमने renting के pros की बात करी. अब rent ना करने के reason दे दिए लोगों को. Correct. अब हम उन situations की बात करते हैं कि जिनमें the person is bound to rent. Okay. Yes, absolutely. क्योंकि वो घर लेना तो चाहता है, लेकिन ले नहीं पा रहा है. Correct. क्या रीजन हो सकते हैं? To begin with, in my whatever number of deals I have done, and not done. Right. फर्क वही हुआ. The deals which I have not done, the biggest reason was credit. Right. अगर किसी का, because of course you cannot be sitting on $1 million to go and buy a home cash, right? Correct. You need mortgage. Absolutely. If you want to buy, you need a mortgage. Right. Or to get a mortgage, it starts with a good credit. Good credit. At least bearable credit, not very bad, right? So right. वो requirement, अगर किसी का ऐसा credit है कि जो बिल्कुल ही वो सही भी नहीं कर सकता है, या फिर it is too down in the range of 200s and 300s. वो तो खैर मैंने नहीं देखे यार. अपनी कम्युनिटी वाले बंदे इतने नीचे नहीं जाते हैं. अपनी कम्युनिटी वाले नहीं, बट और भी दूसरी कम्युनिटी वाले मैंने कुछ देखे हैं जो सॉरी सही नहीं that's okay सी बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स जो इनिशियली आते हैं वो केयर नहीं करते हैं इन चीजों की. करेक्ट. किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने डेट लिया, वो वापस नहीं किया, सेल फोन ले लिया, बिल नहीं दिया, देखी जाएगी, यहाँ पे कौन सा उठा के ले जाएंगे. गाड़ी ली, उसकी इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया. तो ये कहानियां जो होती हैं ये आपको बुरे रास्ते पे आगे लेके जाती हैं. Correct. तो उससे क्रेडिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि बैंक आपको लोन नहीं देगा जब तक आपका क्रेडिट 680 नहीं होगा. Correct. So 680 is the magic number in credit. And उसके बाद भी वो क्रेडिट रिपोर्ट जब देखी जाती है तो उसमें खाली क्रेडिट स्कोर नहीं देखा जाता है. बहुत से लोग कहते हैं, किसी को पूछो कि तुम्हारी क्रेडिट रिपोर्ट कैसी, ओ मेरा स्कोर तो भाई 700 है. Correct. भाई साहब 700 है, जो नया बंदा आया उसका स्कोर 800 हो सकता है क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड ये एक है जिसमें $200 की लिमिट है. Correct. है ना. Correct. तो वो उसके ज्यादा खर्चा ही नहीं कर रहा है. Correct. और वो भी 200 भी पूरा नहीं कर रहा है. हो सकता है उसको टच भी नहीं कर रहा है. Correct. तो उसका तो स्कोर बहुत ज्यादा है, बट क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है? नहीं है. सो नाउ जो डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट रिपोर्ट है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है
कि अगर मैंने बहुत से ऐसे बंदों को मिला हूं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिला हूं कि जो हस्बैंड के पास क्रेडिट कार्ड था, लेकिन they didn't bother to get a credit card for the wife. Yeah. For years, Yeah. 3 4 5 साल. Simply because of lack of knowledge. उनको पता नहीं था. They were not told. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आके शुरू किया $500 का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड. हाँ. है ना? तो उसके बाद साल के बाद उन्होंने, बैंक ने 2 साल के बाद बोला कि सिक्योरिटी हटा दो, कोई बात नहीं, तुम्हें $1000 का लिमिट दे देते हैं. ठीक है. उसके बाद बढ़ते बढ़ते 5000 तक आ गया. अब उसने, बैंक ने 5 से 10,000 का लिमिट ऑफर किया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. ये कहते कि भाई कितना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे उतना खर्चा हो जाएगा. लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रही थी कि दैट इज एन ऑप्शन एंड ऑफर टू इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी. सो पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दैट. आई एम फेसिंग somebody जिसका कि नंबर, वाकई में इनकम में नंबर बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट $500,000, लेकिन क्रेडिट कार्ड का लिमिट कम था. कभी बढ़ाया नहीं. तो जब ये नहीं बढ़ाया, तो उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन की बारी आती है, तो ये सोचा कि इसको फुल यूज करके पे कर देंगे. करेक्ट. तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया. तो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर जो है नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया. अभी 680 भी नहीं रहा. तो देखा नहीं 2 साल. जब देखा तो बोला कि ये कैसे हो गया. जब बात करी तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो पता नहीं था. नाउ दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट मोर देन 30% to 35% क्रेडिट यूटिलाइजेशन is detrimental to your credit score. Exactly. Your credit score starts coming down month after month. Every month revision, credit score नीचे. Correct. Every month revision, उसका assessment होता है, credit score नीचे. Correct. So 30-35% से ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करना चाहिए. एक क्रेडिट कार्ड है तो दूसरा लो, दूसरा है तो लिमिट बढ़ाओ. जो ऑटो अप्रूवल्स आ रही है उनको एक्सेप्ट करो, बट do it responsibly. Higher limit does not mean that you have to spend more. Exactly. Right? So be sensible. 50,000 की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, इसका मतलब ये नहीं है कि जाके गाड़ी ले लो. नहीं. So ये काम नहीं करने हैं, लेकिन इन कामों पे ध्यान नहीं दोगे तो इन कंट्रीज में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग वर्क्स बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड. करेक्ट. राइट? तो क्रेडिट रिकॉर्ड जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि इरेजेबल नहीं है. Exactly. If you're in Rome, then you have to, behave like Romans. Correct. It's as simple as that. Correct. They are telling you to, they will give you more loan if you have proven in the past that you can handle credit. You're responsible. You're responsible. Right. Right? So, and you can only show that you're responsible by having more avenues of getting the credit, right? Absolutely. Then you will get more credit. Right. And I mean, people who do business, they know that you should always be using the bank's money to do more business as much as possible instead of using your own money. Correct. And bank will only give you money if you have good credit. So, right? So coming back, तो credit खराब तो घर आप ले ही नहीं पाओगे. फिर आपको रेंट ही करना पड़ेगा. बिल्कुल. कहीं तो रहोगे. बिल्कुल बिल्कुल. फिर तो रेंटिंग की ऑप्शन है. दूसरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास डाउन पेमेंट की कमी है अभी. डाउन पेमेंट कम है, तो ऐसा करता हूँ मैं 1 साल और सेव करता हूँ. ठीक है. तो क्या लगता है कि आपको 1 साल में सेविंग कितनी हो जाती है? If you're earning average Canadian salary, more than average Canadian salary, let's say $100,000, and your household income is, let's say, $150,000-$160,000, in hand you're getting like what, $9,000 a month? Maybe, yeah. $9,500 a month. Right. And if you're renting, I'm sure you're paying $3,200, $3,300 plus. इतना ही और भी एक्सपेंसेस होते हैं. चलो मैं कहता हूँ आप फिर भी 3,000, आप पूरा घर चला रहे हो $6,000 में. Right. Let's say, which I don't think is possible in today's world. No, not at all. लेकिन चलो फिर भी हम कहते हैं आप मान लो, कर लेते हो आप. तो आप 3,000 बचा रहे हो हर महीने, तो भी साल में आप 36,000 बचाओगे. राइट. तो 36,000 बचा के कैसे फिर आगे काम हो पाएगा? बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 36,000. मैं तो कह रहा हूँ इतनी अच्छी इनकम के बाद तुम्हारा खर्चा भी कम है. Right. फिर भी 36,000 बचा भी लोगे, तो 36,000 से कैसे तुम डाउन पेमेंट दोगे? अगर इफ यू तो एवरेज $1 million होम है. बिल्कुल सही बात है. मैं कहता हूं कि 8 लाख का घर है. आप डाउन पेमेंट के लिए जैसे तैसे, अगर आप 1,50,000 60,000 बना रहे हो ना, तो आप बैंक को जाके बोलोगे ना मेरे को मिनिमम डाउन पेमेंट पे घर लेना है. एग्जैक्टली. तो बैंक क्या बोलेगा आपको मालूम है? बोलेगा कि भाई ये 1.5 लाख बना रहे हो जो,
तो उसमें से तुम इतना नहीं जोड़ पाए आज तक कि तुम 10% डाउन पेमेंट कर पाओ। करेक्ट। ये क्वेश्चंस आते हैं वापस। नहीं, सो दैट्स व्हाट नो, सो अगर 10% चाहिए तो 36,000 बचा भी लियो उन लोगों ने। You know, they lived very very wisely and they didn't spend any money, meager life and all that. फिर भी वो जो 8 लाख का घर था वो अगले साल 8 लाख का तो रहेगा नहीं रहेगा। पहला तो वो प्रॉब्लम है। अगर 5% का भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल टाइम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट the times that we saw in 22 and 23 and all madness. That was madness, right? Generally speaking, a real estate market in Canada will see 5% growth every year. तो 8 पंजे 40, तो 40,000 तो आपका घर का दाम बढ़ गया, right? आप बचाने चले थे पैसे मोर डाउन पेमेंट, बिल्कुल बचाए आपने 36,000, चाहिए आपको, पहले आपको चाहिए थे 80,000 10% के हिसाब से, अब आपको चाहिए 840 के हिसाब से 84,000। एक साल और वेट करो कि थोड़ा और सेव कर लेता हूँ, बिल्कुल, तब और बढ़ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप मतलब to answer your question, how to take, that is the reason probably people just keep on thinking and they never reach that time, correct, when they have enough down payment to buy that home. Right. तो एक हो गया मेजर रीजन ना क्रेडिट होने का। अच्छा, करेक्ट। दूसरा रीजन हो गया कि डाउन पेमेंट इनफ नहीं है। करेक्ट। और कोई तीसरा रीजन आपको लग रहा है कि घर ना खरीदने का क्या रीजन हो सकता है, या क्या प्रेसिंग रीजन हो सकता है कि आप खरीद नहीं पा रहे हो? हाँ, कि आप खरीद चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो। बैड क्रेडिट, इनकम नॉट इनफ, या इनकम इज अनदर थिंग। तो इनकम इज अनदर थिंग व्हिच होल्ड्स पीपल बैक कि यार मेरी जॉब तो चल रही है 1,20,000 की, या लाख की, या 80,000 की, या 60,000 की, लेकिन बीवी की जॉब लग जाए ना तो फिर मैं काम करूंगा। वेरी वाइज, दैट्स ओके। लेकिन क्या अब सबके ऊपर सारी चीजें अप्लाई नहीं होती? जिसका क्रेडिट खराब है उसको तो वाकई कोई पैसा नहीं देगा, राइट? हाँ, उसको क्या करना चाहिए वो भी हम बात करते हैं। करेक्ट। जिसके पास डाउन पेमेंट इनफ नहीं है उसके भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। करेक्ट। जिसकी ये वाकई में ये है प्रॉब्लम कि भाई मैं काम कर रहा हूँ अकेला, लेकिन मैं घर चलाने में एक्सपेंसेस कैसे रन करूंगा अगर मैं मॉर्गेज उठा लूंगा तो, राइट? वो भी एक लेजिटिमेट दिक्कत है। तो बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन भी रहते हैं मार्केट में, है ना? अगर कोई हमसे डिस्कस करता है इस बारे में कि यार मेरा इंटेंट है लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है, उस पर काम करना शुरू करना चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हो सर? आप मुझे बताओ कि डॉक्टर आपकी तबीयत खराब होती है या फैमिली में किसी की तबीयत खराब होती है, आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास जाते हो? खुद तो नहीं इलाज करते हो ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा, बिल्कुल। अच्छा, आपके फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, अकाउंट्स आपको समझ नहीं आ रहे, तो कहाँ जाते हो? अकाउंटेंट। खुद कर लेते हो क्या? नहीं, खुद तो हो ही नहीं सकता ना। जाते हो ना उसके पास? जाना पड़ेगा। अच्छा, आपने अभी वो पीछे बिल्डिंग अपना बेसमेंट फिनिश करवाया था, सारा खुद किया होगा आपने, बिकॉज़ यू आर सो स्मार्ट। क्या बात है यार, बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी है कि मैं आर्किटेक्ट हायर किया, मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जिसने कि वो काम किया। अच्छा, उन लोगों ने किया? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो लोग एक्सपर्ट थे। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि जब घर खरीदने या उसके डिस्कशंस की बात आती है तो लोग खुद क्यों अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं? भाई साहब, वो इसलिए क्योंकि वो बन जाते हैं गूगल ग्रेजुएट। तब वो या फिर अपने भाई को फोन करेंगे जो रियल्टर नहीं है, या फिर अपने दोस्त को फोन करेंगे जिसने 2 घर तो खरीदे हैं लेकिन रियल्टर नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कि क्रेडिट खराब से कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस? डाउन पेमेंट का प्रॉब्लम है, इनकम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर चैलेंजेस and there are solutions for all these challenges. However, people keep on renting most part of their lives because the only people they go to is either their close family and friends or Google graduate, like you said. Correct. So if you have experts in each and every field, similarly, this is what we are sitting here for. Correct. The realtors, they know more than you. They have not bought 2 homes in in their lifetime. They have bought and helped people buy altogether 200 homes. Right. If you talk about Save Max Gold Estate and if you talk about the whole team, maybe we have helped in last whatever number of years 500 homes.
You know what I mean? So it is the cumulative experience of the team which we are ready to provide to you. Right. If you have time and some, that to come to us and ask the right questions. एक ही चीज मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल, ये मैं रिपीटेडली यही बात करता हूँ कि अगर कोई प्रोफेशनल तुम्हें अपना टाइम दे रहा है, करेक्ट, वो भी नो ऑब्लिगेशन, नो फीस चार्ज, करेक्ट, भाई साहब कम से कम जाओ जाके सलाह ले लो। सलाह ले लो, है ना, फ्री है। करेक्ट, तुम्हें वो चूरन की गोली नहीं देगा, सिर्फ सलाह देगा। उस पे भी तुम डिस्कस कर सकते हो अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों यारों से जिन्होंने काम किया है कि भाई ये जो सलाह मिली है ठीक है गलत है। करेक्ट। तो हम तो ये भी नहीं कह रहे कि भाई पहले पैसे जमा कराओ तब ज्ञान मिलेगा। कंसल्टेशन फीस हमारी $300 है, उसके बाद बात करेंगे। डॉक्टर और आर्किटेक्ट तो पहले वो भी जमा करा लेते हैं। एग्जैक्टली। सी दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन नाउअडेज बहुत सी दुनिया है कि उसको कहो ना कि भाई ये चीज पूछेगा आगे कितने की है, कहता $10 की। नहीं, अभी किसी को बोल दो ना ये फ्री है, तो ये दो तरह के बंदे होते हैं। एक कहते हैं नहीं फ्री है नहीं चाहिए, दूसरा होता है फ्री है तो दो मिलेगी। तो सबका पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन ये चीज लोगों को जरूर सोचनी चाहिए कि भाई साहब प्रोफेशनल हैं जो मेहनत करके सीख के यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत सी बार वो नॉलेज इंप्लीमेंट कर चुके हैं, एक्सपीरियंस अंडर द बेल्ट है उनका। तो उनसे कुछ पूछ लिया जाए कि भाई अगर मेरी ये सिचुएशन है तो इसमें कैसे हेल्प हो सकती है, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हो, मेरा ये गोल है, हेल्प करो मुझे अचीव करने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये वो लोग नहीं कर पाएंगे जो आपके आजू बाजू में हैं। वो खाली आपको सलाह देंगे कि भाई ये काम मत करना, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं करना और कैसे किया जा सकता है, कैसे पॉसिबल है। करेक्ट, बिकॉज दे डोंट नो एंड वी नो एंड यू शुड नो दैट वी नो। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो लोगों को समझ में खुद ही आएगा तो आएगा, क्योंकि अगर कोई बीमार डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो उसको दवा देने डॉक्टर घर पे नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। तो सिमिलर सिचुएशन हमारे फील्ड में भी है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग यहाँ तक नहीं गाइड कर पाते या लोग गाइडेंस नहीं लेते कि अपने क्रेडिट को कैसे मैनेज रखना है, शुरू से लेकर कंट्रोल्ड कैसे चलना है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कैसे रहना सर है। वो तो छोड़ दो, कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहना तो एक चलो ठीक है, वो तो उसने मतलब क्या कर सकते हैं, शुरू में किसी ने नहीं बताया। राइट। आई एम वर्किंग विद अ क्लाइंट हु ओन्स अ रेस्टोरेंट। कैन यू बीट दैट? ही ओन्स अ रेस्टोरेंट एंड हिज स्कोर इज लेस देन 600। वाओ, सोचो। And now he came to me, he wanted to buy a home. When we checked all the papers and everything, we told him, no, we need to first work on your credit. Right. And he has started working on the credit. And the restaurant, by the way, is on Lake Shore in Etobicoke, Port Credit. Wow. It's a good restaurant, makes good money. Even then, that guy is not able to manage the credit. Now he is working on certain steps that have been provided to him by our team. Within 8 months or 9 months, he will be up and running, and then he has money, he has income, he has everything. Correct. But he doesn't have the credit. And now he's working on it. वही कमी किस चीज की थी? सही सलाह की। सही सलाह की। Correct. Right? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, ओवरलुक कर देते हैं चीजों को। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी सही प्रोफेशनल के साथ बात करोगे तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। And the same thing happened. Yes, I remembered. He was renting all this while for the last 5-6 years. Wow. Because everyone told him that you cannot buy a home, you have bad credit. Nobody told him that you can work on it. Correct. देखो भाई, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। And now he's working on it. एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि अगर समस्या है तो समाधान भी। Exactly. ये याद रखना, wherever there is a problem, there is a solution. All you need to focus is on solution, not just keep ranting about the problem. Because if you want to come out of that, solution तो जरूरी है। अब आपको ये ढूंढना है कि solution दे कौन रहा है और किस चीज का, मतलब बाकी गलत समस्याएं लेके मत आना हमारे पास। सही बात है भाई, डॉक्टर बंगाली नहीं बैठा यहाँ पे। ठीक है, नहीं गाइड वहां भी कर देंगे। सही, वेरी नाइस, सही। सो नोवी भाई, हाउ मच टाइम डू वी हैव? समय की कमी नहीं है। समय देखो, जब भी हम अच्छे मूड में बैठ के डिस्कस करते हैं लोगों से, तो मेरे को लगता है कि
to perform better in your life, you have to be very good listener. और अगर तुम अच्छी से बैठ के लिसन नहीं कर पाओगे ना किसी को भी, तो तुम जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे. That is what I believe. Yeah, absolutely. जो बंदा ज्यादा बोलता है, कम सुनता है, वो कहीं ना कहीं तो जरूर फंसता है. Right. तो सुनो, समझो, जो कुछ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको गेन करो उसमें से, and build on to that. And if you know something, then it's fine. But a lot of people don't share it with others. Correct. Right? अपने आसपास में शेयर करो. अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा नंबर दे दो कि भाई साहब इन लोगों को पता है, इनसे जाके बात करो. Correct. ठीक है ना. तो अभी अगर हम दोबारा से आए, $1 million क्वेश्चन इन टुडेज मार्केट, व्हिच इज द टॉपिक ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, कि भाई बाइंग वर्सेस रेंटिंग. तो हमने रेंटिंग के बारे में बहुत सी बातें की, हम बाइंग के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, 4 reasons why people could not buy. Correct. तो अब why should people buy? Now हम importance of buying पे आएंगे solely. Importance of buying, and more so in today's market. Correct. So a lot of things have changed in the last 5-6 months. Correct. Right? Right. And the biggest force which is working that people should start considering buying are the interest rates. Right. Earlier, when the interest rates were in the range of 7%, of course, renting was making more sense. Right. Right? Because you were only paying interests in the mortgage. And if not, you were paying very high mortgages because the interest rates were so high. Correct. And then nobody was talking about it because there was no point talking about it. Right. We are talking about it today because it is the need of the hour. Correct. From 7, it came down to 3.75. 7 was the prime. Like the policy rates, they are now 3.75. We are looking at another, in the next 6 to 8 months, at least 1% drop. Correct. At least 1% drop as per Mr. Tiff Macklin and all that, right? Right. The whole industry is like gaining towards, gaining that thought that we are looking at least 1% policy rate reduction in the next 6 to 8 months. Correct. Right? Absolutely. तो ये जो 3.75 है, ये 2.75 हो जाएगा. Right. Policy rate. इसका मतलब the effective rate of mortgage will be in the range of 3.5 to 4. भाई साहब, अगर मैं आपको आज की तारीख का बताऊं, तो डिफरेंट बैंक्स फिक्स्ड 3-year fixed interest rates are down between 3.89 to 4.09%. Absolutely. Right? तो एवरेज ऑफ 4% अगर आप लेके चलो, 3 साल का फिक्स इंटरेस्ट रेट अभी 4% पे आ गया है. करेक्ट. तो आई एम नॉट श्योर कि इफ पीपल आर लुकिंग फॉर दैट 2% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड में मुश्किल है. Yeah. I mean, it's very difficult for us to see those times again. Correct. So वो वाली उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए. अगर 3.5 पे भी टच हो जाता है, तो you should be jumping. Now the situation is what is happening. लोग इंटरेस्ट रेट के ऊपर खाली फोकस देके रखते हैं, लेकिन घरों की वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं देते हैं. I was coming to that. Right. आपने बोला कि 4 का 3.5 तो हो जाएगा, लेकिन जब तक वो होगा, आप वो 0.5% जो सेव करने की कोशिश कर रहे थे, वो you will be paying more on the increased value of the property that you will be buying. Right. 8 लाख का घर हो, let's say $1 million का घर है, 8 लाख की मॉर्गेज है. ठीक है. To make it easy. ठीक है. तो 8 लाख की मॉर्गेज पे अगर आपको 0.5% इंटरेस्ट रेट चीप मिलता है, तो फर्क कितना पड़ता है? We can check right now. Let's look at the real numbers. मोटा मोटा अगर देखें, तो 8 लाख की मॉर्गेज का 1% बना 80,000. हाँ. ठीक. हाँ. बन गया ना? नहीं बना? नहीं. 8,000. मैं तो बनवाने की कोशिश कर रहा था कि बन जाए. तो अगर 0.5% का डिफरेंस आया तो कितना बना? 4,000. 4,000. तो साल के पीछे 4,000 बचाया. करेक्ट. अब साल में वैल्यू कितनी बढ़ी घर की? साल में अगर $8 million घर 5% भी बढ़ जाता है, राइट, तो 50,000 बढ़ गया. 50,000 बढ़ गया. बचाना कितना? नहीं, सुनो तो, उस 50,000 पे आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी दोगे, बाकी 3.5% भी तो दोगे ना. हाँ. तो आप एक्स्ट्रा दोगे, घर की वैल्यू तो बढ़ी गई, वहां पे तो यू मिस्ड इट. राइट. बट इवन ऑन दैट 50,000 यू आर पेइंग एक्स्ट्रा 3.5%. 3.5%. राइट.
So there is no way you can save. So, okay, but because we are talking about renting and buying, so it has to be related, right? Correct. तो अगर आप कह रहे हो 8 लाख 1 मिलियन घर है, 8 लाख की मॉर्गेज 20% डाउन पे, तो मॉर्गेज कितना होगा उसका? मॉर्गेज के नंबर आप दो, मॉर्गेज निकाल लेते हैं. At 4%. 4% एवरेज, हाँ वही लेके चलिए. Okay. So at 4% you are looking at $3,800 of mortgage payment. हाँ, तो ये है भाई साहब $1 million का घर जिसपे 8 लाख की मॉर्गेज है, 4% इंटरेस्ट रेट पे हमने $3,800 की मॉर्गेज निकाली है. नाउ आज की तारीख में $1 million में क्या मिल रहा है? किस जगह? लेट्स से ब्रैम्पटन, मिसिसागा, बर्लिंगटन, ओकविल तो खैर देयर आर सर्टेन एनोमलीज, लेट्स नॉट टॉक, लेट्स टॉक अबाउट के यहाँ प्रैक्टिकली अगर हम ब्रैम्पटन की बात कर लें, आज $1 million में ब्रैम्पटन में क्या मिल जाएगा आपको? A decent semi, big one, nice one, with a finished basement. Yeah. A 3-bedroom detached. A 3-bedroom detached. Possible. Single car maybe. Yeah. So, or a townhouse. Yeah. With the वो townhouse तो सस्ता मिल जाएगा, 9 लाख में मिल जाएगा, 8.5 लाख में मिल जाएगा. Correct. With the finished basement 2 मिल जाएगा. Correct. Right. Correct. तो अगर हम let's say $1 million में semi detached with the finished basement 2 bedroom की मिल रहा है. Correct. तो उसका रेंट कितना आ रहा है आज की तारीख में? बेसमेंट 2 bedroom, very conservatively speaking 1600-1500. बिल्कुल कहीं नहीं गया. मैं 1800 कहने वाला था लेकिन 1600 लगा के चलते हैं. 1600 लगाते हैं. हाँ. तो कितनी मॉर्गेज बनी थी हमारी? 3800. 38 में से 1600 माइनस करो. नहीं, पहले प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ो सर इसमें. अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स जोड़ते हैं. चलो $400 प्रॉपर्टी टैक्स, 450 जोड़ो. 450 4250 हो गया टोटल. $4,250 मंथली EMI as well as property tax and $100 insurance. जब 4350 हो गया. हाँ. अब $4,350 का टोटल मंथली आउटगोइंग पेमेंट. इसमें से माइनस करो आप रेंटल इनकम विच इज $1,600. ठीक है. 2750. अब इसमें से माइनस करो कि जो उस घर की टोटल जो मॉर्गेज पेमेंट दी थी उसमें प्रिंसिपल कितना गया था? That is the biggest game changer. So let us do that. I will tell you exactly how much you are. By the time I do that, why don't you tell people why are we talking? What is that principal interest portion? And why was it not happening earlier in the last 2-3 years? So what is happening, guys? क्या होता है कि जब हम मॉर्गेज लेते हैं तो मॉर्गेज के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. मॉर्गेज पेमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल पोर्शन, एक होता है इंटरेस्ट पोर्शन. तो अर्लियर पिछले 2-1 साल में जब से इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था तो इट वाज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कॉज वो बैलेंस बिगड़ चुका था. सो मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट्स आर गोइंग इंटरेस्ट ओनली. अगर उसमें कुछ प्रिंसिपल था भी तो शायद 4000 में से $100 प्रिंसिपल जा रहा हो, किसी का $39 उसका इंटरेस्ट ही जा रहा था. तो जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट का पोर्शन मैक्सिमम होता है उस पेमेंट में. तो as soon as the interest rate starts coming down, what happens is कि वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट इक्वलाइजेशन में आ जाता है, या फिर प्रिंसिपल थोड़ा सा कम रहता है इनिशियली एंड इवेंचुअली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बिकम्स इक्वल. सो राइट नाउ विद द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वी आर सीइंग मोर देन 30%, 30-35% प्रिंसिपल जा रहा है अभी इजीली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. करेक्ट. तो अगर हमने कितना 3800 की पेमेंट आप कर रहे हो कैलकुलेट वैसे ना? कर लिया मैंने, हो गया. कर लिया. हाँ. तो आप नंबर शेयर कर दो ताकि थोड़ा सा लोगों को जानकारी हो जाए उस चीज की. Out of 3820, which was the total mortgage payment, not property tax and not insurance, your total principal which you are saving is 1340. तो भाई साहब $1340 आपके जा रहे प्रिंसिपल में. $1340 गोइंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड योर इफेक्टिव आउट ऑफ पॉकेट expense was 2700 something. Correct. 2750. 2750 minus 1340, which is your forced saving. Now,
सिर्फ $1410 आप दे रहे हो। $1410 इफेक्टिव पेमेंट में आप सेमी डिटैच घर के ओनर हो। करेक्ट। और ये मैथ आपको कोई समझा नहीं पाएगा क्योंकि आपके घर कोई दवाई की पुड़िया नहीं लेके आएगा। हाँ। आपको ही आके समझना पड़ेगा। करेक्ट। अपना समय निकालोगे, हम तो समय देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सर अब किसी के पास 20% नहीं है, फिर क्या करेगा? तो भाई उसके भी नंबर जोड़ देते हैं ना, कोई खास फर्क नहीं आएगा। लेट्स रन। कोई खास फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अभी जहां भी वो आप रह रहे हो इस समय, आई एम अज्यूमिंग यू आर पेइंग $2700-2800 in rent. सर 3 bedroom semi detached, today's market $3000 rent is on the rolls. And right now you are paying only $1400 to stay in that own home. the same damn home. Even if you have 10% down payment, let's say the value of the house will have to be 99999 in that. नहीं भाई साहब, अच्छा आप तो 1.5 हो गया। Oh my God. तो अभी तो गेम चेंज हो गया है। अभी तो सिक्योर्ड मॉर्टगेज जिसको बोलते हैं कि which is less than 20% down, उस पे भाई साहब 30 years की amortization भी आ गई। करेक्ट। उसको वो लोन आपको अब $1 million से ज्यादा का भी लोन मिल सकता है। मतलब मिलियन से ज्यादा की परचेज, आप 1.5 मिलियन की परचेज हो सकती है। करेक्ट। जिसपे कि आप लेस देन 20% डाउन पेमेंट करके आप घर बाय कर सकते हो। नाउ आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दैट this increase of limit from 1 million to 1.5 million is most effective on the houses which are right in that ballpark range, 1 million to 1.1 million, 11 साढ़े 11 तक के। 15 लाख का घर 10% डाउन पे मत लेना। Correct. मर जाओगे। Correct. अगर पैसे नहीं है that is sure death. तो वो, लेकिन भैया ने बताया है कि अब तो 10% भी ले सकते हैं, तो ले लेंगे। आप थोड़ी पूछेंगे आके भाई वो भैया पेमेंट नहीं देंगे उसकी। सर देखो मजे की बात, जिसके पास 20% नहीं है ना $1 million घर लेने के लिए, सिर्फ 10% भी है, पहली बात उसमें भी 30 years की amortization हो गई। फर्स्ट होम है तो करेक्ट, उसमें भी आप क्या कहते हैं, हाँ चलो खैर ये तो $1 million है, बट स्टिल 10% डाउन देके आप ले सकते हो। राइट। पेमेंट अर्लियर वाज 3820, नाउ इट इज ओनली 4297, लेट्स से 4300। राइट। So 38 minus 43, $500 only increase. So earlier you were paying $1400, now you are paying another $500, so which is $1900. भाई साहब अभी भी रेंट से $1000 कम हो, तो you cannot beat the maths. Once you sit with us. Correct. और अमित जी, numbers don't lie. Absolutely. अब इन numbers के बाद ना गेम खत्म है। अभी तो आप रास्ते के अंत तक पहुंच चुके हो। करेक्ट। इसके आगे क्या ही करोगे? इसके आगे सर भैया ने कहा है कि ऐसा कुछ घर ही नहीं होता है, ये लोग वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, फिर जाओ तो मिलता नहीं है। जाओ तो मिलता नहीं। ठीक है, बिल्कुल भैया की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भैया ऐसा घर कभी नहीं लेके देंगे। करेक्ट। क्योंकि भैया चाहते ही नहीं है। पॉइंट ये है कि ऐसे घर आज की मार्केट में ही अवेलेबल हैं। विल दे बी अवेलेबल आफ्टर अ ईयर? आई डोंट नो, बट आर दे अवेलेबल टुडे? यस दे आर। भाई साहब मैं एक बार फिर से कहूंगा, अगर आप घर ढूंढ रहे हो ना, तो आज की मार्केट से ज्यादा अवेलेबिलिटी कब होगी आपके पास? हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री वी आर सिटिंग टुडे, हाईएस्ट एवर इन्वेंट्री। वो कहते हैं ना कि सपनों का घर लेना है ना, तो आज की तारीख में ही मिलेगा, बिकॉज यू हैव सो मच टू चूज फ्रॉम। और जब मार्केट भागेगी ना, तब वही मिलेगा जो उस दिन अवेलेबल है। करेक्ट। और ऑन द टॉप अमित, हम चलते चलते साथ में बात कर देते हैं, इवन दो इट साउंड्स लाइक यार ये लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, वैसे तो हम ज्ञान बांट रहे हैं खाली यहाँ पे लेकिन अपने आप को प्रमोट करने की बात है, एक और आपके फायदे की बात बता दे रहे हैं कि आप घर खरीदिए हमारे साथ, और हम क्या देंगे उसके साथ? फ्री फर्नीचर फॉर द होल हाउस। पूरे घर का फर्नीचर। कुर्सी पे बैठोगे वो भी हम देंगे, सोफे पे बैठोगे वो भी, जिस बेड पे लेटोगे वो भी देंगे हम, साइड टेबल भी, जिस टेबल पे बैठ के खाना खाओगे वो भी देंगे। तो और क्या चाहिए? करेक्ट। जिंदगी से तुझे और क्या चाहिए? तो वो पंजाबी में क्या बोल दो, और तुहानू की चाहिदा? की चाहिदा?
या Amazing. तो भाई मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ टॉपिक कवर किए हैं इसमें, रेंटिंग वर्सेस बाइंग में। आप रेंट करोगे तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बाय करोगे क्या फायदे हैं, नुकसान है। हाँ, बाय करने का सबसे बड़ा नुकसान आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आपके पल्ले एक प्रॉपर्टी पड़ जाएगी, हाँ, है ना। करेक्ट, तो अब देख लो, वो फायदे की बात है, नुकसान की बात है। कल को मतलब बच्चे ये नहीं कहें कि ये नेगेटिवली अप्रिशिएटिंग एसेट दे दिया हमें, करेक्ट. है ना, वो भी तो प्रॉब्लम है। No, no, absolutely. तो ये सोच समझ के डिसीजन लेना कि अच्छा खाओगे तो अच्छी सेहत बनेगी, नुकसान भी हो सकता है उसका, ज्यादा लंबा जियो। Hmm. सिमिलरली अच्छी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ये है कि वो आपके पल्ले पड़ी रहेगी, Correct. तो उससे फायदा भी होगा लॉन्ग टर्म में। Hmm. तो पता नहीं क्या फायदा वाकई में लेना चाहते थे या नहीं लेना चाहते थे, Correct. लेकिन ये काम तो जरूर होगा। Correct. तो अमित, अभी तुम्हें लगता है कि कुछ रह गया है कहीं पे? I think we have explained a lot of things. If you have any questions by the audience, then we can answer them. Novi, if you can see, but otherwise, I think हमारी ऑडियंस भाई साहब ऐसी है कि वो I have something going on. अच्छा You cannot see the questions? ऊपर है। If somebody wants to stay for 2-3 years in Canada, should they buy or rent? That's a great question. Hmm. Do you want to start or shall I start? Concern is maybe that property gives some benefit After some years. If buy, but it's not guaranteed either. Okay. So basically what they're asking is कि अपना if 2-3 years they're living in Canada, just for 2-3 years, should they buy or rent? And should it be like the pre-done or like pre-made house and all? 2-3 साल के स्टे के लिए भी अगर प्रॉपर्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, do you want to say something? Okay. So if you're saying that they will stay for 2-3 years and then they will sell and leave, then no. Because there are taxes, there are land property taxes, there are land transfer taxes involved in the transaction, there are real estate commissions involved, there are lawyer fees involved, right? Moving cost is involved. So I don't think that if you put all those things together, then in 2 and 3 years, if you want to sell, it probably will not make sense. Or even if it will be very, very, the hassle will be more than the profit. Right. However, you stay in that house and make sure that it is something which can be rented out when you leave. And then wait for the right appreciation of that home. Go out wherever you want to go. You go to America, you go to India, wherever you want to go. And then rent that home out so that your mortgage is being taken care of. And then make sure that your realtor you're in touch with your realtor always. And whenever there is a right time that, after 2 years or 3 years or 4 years or 5 years, when you can make maximum benefit out of that real estate investment, then you should sell. Right. That is what I think. What do you think? My take is a little bit different. Yeah. See, it's personal perspective again. Correct. तो मैं ये कहूँगा, अगर हम डिटेल में इसको एनालाइज करें तो 2-3 साल यहाँ पे रहना है। सबसे पहले तो ये पर्सनल सिचुएशन रहेगी कि बंदा उसके बाद क्या करना चाहता है। डू दे वांट टू लीव कनाडा परमानेंटली? नंबर 1 क्वेश्चन। और दे आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ अ ईयर और 2 एंड देन अगेन वांट टू कम बैक। करेक्ट। सो बहुत सारी चीजें हैं, वन सोल्यूशन डजंट फिट ऑल, क्योंकि एज सून एज यू लीव दैट प्राइमरी प्रॉपर्टी, दैट बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट। तो once it is your investment and by the time let's say you take a 2 years gap, तो 2 साल में जितनी भी एप्रिसिएशन होगी वो आपकी कैपिटल गेन में आएगी। उसके बाद से फिर आप उसको प्राइमरी बना लोगे। तो सर्टेन काइंड ऑफ उसमें रहेगा जो कैपिटल गेन्स वाला, टैक्सेस वाला हिस्सा रहेगा। अगर आप परमानेंटली छोड़ के चले जाते हो तो विद होल्डिंग टैक्स लगेगा जब आप बेचोगे। तो पहले सीआरए के टैक्सेस सेटल होंगे, फिर आपको पैसा मिलेगा। और विद होल्डिंग कैन बी up to 28% of the total value of the home. Correct. $1 million का घर बेचा, 2,80,000 सीआरए विद होल्ड कर लेगी। लॉयर को बोले विद होल्ड करो, और जब तक टैक्सेस सेटल नहीं होते तब तक वो सारे पैसे नहीं देने। हो सकता है 2,80,000 आप उसमें पीछे रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी 8 लाख की मॉर्गेज है। अरे 8 लाख की मॉर्गेज है, तो दोज आर काइंड ऑफ थिंग्स। सो उस केस में, स्पेसिफिक सिचुएशन सिनेरियो में, I would say that you have to personally take advice of short-term investments. Correct. One is that side. Second side is
कि आप अगेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला इन सच अ वे कि जिससे कि आपकी टैक्सेस वाली इम्प्लीकेशन, देखो टैक्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे नो मैटर व्हाट, बट वट एवर यू कैन सेव, फॉर एग्जाम्पल लैंड ट्रांसफर टैक्स एंड ओनिंग अ प्रॉपर्टी, यू कैन सेव दैट, राइट? देयर आर सर्टेन वेज, प्री कंस्ट्रक्शन में आप कर सकते हो तो लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लगता है, राइट? अब अगर आप लॉन्गर क्लोजिंग का लेके चल रहे हो तो सर्टनली 3-4 साल की क्लोजिंग पकड़ी तो जब तक आपका वो मूड बना नहीं बना तब तक वो सारी कहानी खुल जाएगी, Absolutely. है ना? So basically what you're saying is कि every person's scenario is different. How much money do you have? Correct. What are your needs? You know, so it again, don't ask your bhaiya, come to me. भाई प्रोफेशनल जो है ना उसी के पास जाके एडवाइस लो। Correct. अगर आप इधर उधर कहीं भी पहुंचोगे तो कोई भी गोली देके निकाल देगा। तो see, that is, I think that is as raw as we can. Correct. And that is what the goal is over this podcast. Yeah, of course. To make you familiar with the truth around. Absolutely. Right? हमें नहीं पता है किसने आपको क्या कहा, हाँ. लेकिन जब आप हमारे पास आओगे तभी हम तुम्हें बता पाएंगे क्या ठीक है क्या गलत है। Absolutely. So one more question I see, is there any different legal term we can use to get more rights in favor of landlords? I am not sure what. Different legal term? हाँ. Guys, मैं आपको एक बात बताऊं कि रेजिडेंशियल जो है टेनेंसी, इट इज टोटली डिफरेंट देन कमर्शियल टेनेंसी। Correct. If you are trying to become an investor and you are trying to find a foolproof way of not losing any money, Yeah. but only looking at the positive aspect, I think commercial is a goal. Okay. ठीक है, bottom line, commercial is a goal. Otherwise, अगर आप रेजिडेंशियल टेनेंसी के चक्कर में ही जाना चाहते हो तो इफ यू गो टुवर्ड्स एल्बर्टा तो उसमें 15 दिन का वो टाइम पीरियड है कि जब भी वो छुट्टी कर देंगे। Okay. I think on the right. 1 sec. Sorry guys. No. You carry on. You carry. I'll take care of the mic. इधर से. I know how to take care of mic. Okay. बहुत गहरी बातें करते हो आप। तो सिचुएशन ये है कि अगर तो आप कमर्शियल टेनेंसी में आते हो तो 15 दिन अगर टेनेंट ने किराया नहीं दिया तो उसकी छुट्टी, यू कैन चेंज द लॉक्स एंड कीप हिज स्टफ, confiscate that as well to recover your rent. Okay. Yes. Or you can dissolve it and recover your rent. In Alberta, right? Here too, commercial में वही है। Okay, correct. देखो यहाँ पे कोविड में बहुत से रेस्टोरेंट बंद हुए, हाँ, उन्होंने किराया नहीं दिया था, हाँ, तो उसके बाद जब ताले चेंज हुए ना तो उन्होंने सामान भी नहीं उठाने दिया, हाँ, वो सामान भी बेच के पैसे पूरे किए। Correct. तो फर्नीचर बेच के रेजिडेंशियल का तो क्या ही पैसे पूरे करोगे, Correct. ठीक है? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज, तो एक तो ये तरीका, दूसरा अल्बर्टा में जो रेजिडेंशियल टेनेंसी है दैट इज एज गुड एज कमर्शियल टेनेंसी है। Right. 15 दिन में सामान बाहर, खत्म कहानी, किराया नहीं, घर नहीं, फिनिश। तो ये एक तरीका है। कमर्शियल में घुसोगे तो certainly एक another aspect है। That is a different ball game altogether. Absolutely, but you have to have a different kind of appetite for that. One second, similarly, there are a lot of people who fear commercial investments. जबकि it is more rewarding at some times. समझ नहीं है लोग। That's what. It is more rewarding at times if you play the cards nicely and in a proper way. Right. So some has one more question, but vacant unit tax will be starting from January 24. Would like to know how much % it would be. तो भाई टैक्स क्यों पे करना है आपको जब आप वही घर किराए पे दे के आप इनकम बना सकते हो वर्सेस खाली की मॉर्गेज दोगे प्लस उस पे वेकेंट प्रॉपर्टी टैक्स, वेकेंट होम टैक्स दोगे, उसका क्या फायदा है? I think vacant unit tax in British Columbia they already have this, right? टोरंटो में भी है। हाँ, British Columbia I think it's 1%. British Columbia implemented that. Toronto followed that, and it will be soon implemented province wide. Correct. तो province wide भी मतलब वही है कि उस एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी किल्लत है यूनिट्स की तो वहाँ पे लोग वेकेंट रख के चलते हैं। Correct. अब वेकेंट रखने के भी रीजन अलग हो गए क्योंकि एलटीवी बहुत स्लो है, इसलिए वो लोग जो एक साल में बेचना चाहते थे वो वेकेंट रखते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, उस चीज के बारे में मत ही सोचो तो अच्छा है कि भाई पैसे लूज करने के बारे में कौन सोचता है। तो आई वुड रादर रेकमेंड यू, सजेस्ट यू समथिंग, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वेकेंट रखनी पड़ती है तो उस प्रॉपर्टी में पैसा मत डालो, right? Instead, put the money somewhere else where you can grow and where you can take more benefit out of it rather than putting in a negative cash flow investment. Correct. Right?
And now we have more and more opportunities like that, which are available. There are tons of opportunities available if you see through the eye of professional. Correct. Right? Now, a professional is the one who cannot just show you the property, but also give you the math. How does it work? कितने की प्रॉपर्टी मिलेगी, कितना रेंट जनरेट करेगी, कितना पॉजिटिव है, कितना न्यूट्रल है कैश फ्लो, नेगेटिव है कैश फ्लो. अगर कोई बंदा आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता है, मतलब उसको खुद को समझ नहीं है. अगर उसको खुद को समझ नहीं है तो वो आपके पैसे कैसे बनवाएगा? सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा. हमेशा किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखते हो. प्रोफेशनल के पास जाने से पहले या उसकी एडवाइस लेने से पहले उसके साथ मिलके बैठ के बात करके देखो कि उसको कितनी समझ है. अगर उसकी समझ आपकी समझ में आती है तो समझिए कि आपका फ्यूचर बन गया है. समझिए, समझना भी एक समझ है. All right. Perfect. So, because I think that we discussed most of the topics and most of the things. मेरे को लगता है ज्यादा टॉपिक डिस्कस हो गए हैं. ज्यादा टॉपिक डिस्कस हो गए. हाँ. ठीक है, तो फिर पैसे ले लेते हैं. पैसे तो भैया पैसे तो भैया. So before we wrap up, just to give you everyone, the audience also a context. I have a listing in Milton as we speak. So 1201 Mowat Lane, and it is listed for $1,150,000. Right. A small, as you said, that numbers speak louder and more clear than words. Right. So I was just going through it. So the mortgage, if you pay 20% for that property, $1,150,000, you are looking at a mortgage of $4,400. Now it's a one of the biggest lots in Milton. In Milton, okay. 1.5 minutes drive to the highways and the best of the schools over there. Okay, I'm not selling the property. But it has a separate entrance basement to it. Which is currently rented out at $1,500. Right. Okay. So $4,400 is your mortgage. You deduct $1,500, which you can get from the basement potentially. You are looking at $2,900. Right. To live in one of the biggest lots, semi-detached in Milton. Out of that $2,900, your principal payments are $1,520. Wonderful. So of course, 1,380 is the interest component. Exactly. Which is what your effective payment Not is. 1,300, 44 minus 4,400, because I already deducted the basement rent. Right. Interest component is big, but effective payments from your pocket is around $1,500-$1,600. Right. This was not possible when the interest rates were high. Right. This was not possible when a similar semi-detached on the same street sold for $1.3 million in 2022 February. Right? Can things be more favorable? Same house is at $150,000 cheaper. Right. The interest rates are very, very lucrative and in your favor. Right. There is somebody who is ready to, pay a portion of your mortgage from the basement. Right. Check that listing out, guys. 1201 Mowat Lane. We have open house also tomorrow, Saturday and Sunday, between 2 to 4. And if you do drop by, come, I'll explain all the things to you more clearly. Absolutely. That is renting versus buying. Oh, yeah. Real example from our brokerage. 100%. 100%. Guys, the whole reason for this podcast is to make you understand what you are missing out on if you are renting. और अगर आप buy नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सही help की जरूरत है. Correct. क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्यूशन होगा. और इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट आज का फिनिश करते हैं. Yes. और फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी सलाह चाहिए हो, और कोई भी एक्शन लेना हो, एंड समथिंग इज होल्डिंग यू बैक, कम टॉक टू अस. माय नेम इज शमी बाबा. 416-557-9811. And this is Amit Tiwari, broker, Save Max Gold Estate, 437-217-7574. All right, perfect. Thank Take you. care. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. Let's wrap it up.